Alright, so I have started the recording and everything. So ठीक है, let's begin. So मैं first चीज ये discuss करूंगा that how do we decide that which colleges we would want to apply, right? Now, when I talk about this thing that which colleges to apply, there are two major segments, right? First, हमारा होता है target college, and second is our backup college. Now, backup college really depends upon this factor that is it your final attempt, right? Now, everyone is different in this aspect, right? हर किसी को अब ये अपनी कंडीशन खुद पता है, इसमें मेरी तो जरूरत नहीं है आपको. देखो, if you think that it is your final attempt and you don't want to give CAT again and you are very clear about this fact, then आपको बैकअप कॉलेजेस को मिनिमाइज करना है और ऑलमोस्ट निल कर देना है. ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मेरे को तो इसी साल एडमिशन लेना है, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस, then you have to maximize the backup options. Then it is a costly affair because right now we are beggars, we are not choosers. Simple as that, right? So target colleges क्या होते हैं, ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. पहला फैक्टर जो हमारा होता है ये होता है हमारा मॉक परसेंटाइल, कि हमारी परसेंटाइल क्या आ रही है और हमारी पोटेंशियल परसेंटाइल कितनी है. इन दोनों चीजों को अब आपको ही देखना पड़ेगा, कोई और नहीं बताएगा आपको. I'll give you a very small example. Let's say you want to target FMS. Everyone wants to target FMS, right? FMS is one of the India's best college that you have to apply to, right? Now, for a fresher and especially an engineer, you need somewhere around 99.6 percentile in order to get a call and a safe convert, right? For a non-engineer fresher, you need somewhere around 99.2 percentile in order to get into this college, right? So this is what the factors are that are contributing. Now, last year in CAT, 85 score gave you 99 percentile. Last year CAT में 85 के score पे आपकी 99 percentile आई थी, right? Now this I am talking in the respect of general category. I don't have a lot of data around the other categories and I seriously won't be able to help it here, right? So I'll give you the information that I have at my end, right? सब कुछ मैं जो बताऊंगा आपको. Now, and as I told you कि 85 पे आपकी 99 percentile आती है. Now, if you are getting the score of somewhere around 60s in mocks, ठीक है, then you may apply to this college ये सोचते हुए कि मेरा potential है, मैं वहां पहुंच सकता हूँ. But let's say if you are someone who is scoring in 20s in mocks, तो अभी आपको ये कॉलेज को अप्लाई करने की जरूरत के लिए नहीं सोचना चाहिए यार. सिंपल एज दैट. एवरी कॉलेज इज कॉस्टली. रिमेंबर दिस पार्ट दैट फॉर एवरी सिंगल कॉलेज you have to pay a lot of amount, right? It is not just one thing. You have to pay in order to fill the form, right? तो आपको इस बात को बड़ा ध्यान रखना है. अब क्या क्या फैक्टर्स है जो आपकी इस बात पे डिटरमाइन करेंगे. सबसे पहले मैंने बोला मॉक परसेंटाइल, पोटेंशियल परसेंटाइल. उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर होता है एक आरओआई. अब आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट? अब ये भी हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एमबीए के ऊपर 15 लाख 20 लाख खर्चना चाहते हो कि नहीं खर्चना चाहते हैं, राइट? Depending upon the quality of MBA, depending upon the placements, ROI is a very important factor that helps you decide the target college. इसके अलावा location is a very important factor, right? What do I want to say there? कि let's say आप एक college, आप let's say दिल्ली में रहते हो, you stay in Delhi, right? And you hypothetically let's say you got 88 percentile, आपको 88 percentile मिलते हैं कैट में, hypothetically दिल्ली में हो 88 percentile. अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? 4 IMI, LBS, इसके अलावा DSC के थोड़े बहुत चांस हैं, वैसे तो नहीं है बट 94 95 जाती है. बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो बॉर्डर लाइन कॉलेज कह सकते हो कि अगर सेकंड थर्ड काउंसलिंग में नंबर आए, किस्मत अच्छी है तो.
IMT 88 में नहीं मिलता, IMT तो 94 से ऊपर मिलता है, 95 के अराउंड। IMT इज नॉट ऑन 88%, राइट। नाउ ये वो कॉलेजेस हैं जो आपके दिल्ली में है, राइट। इसी के अलावा नाउ 88 परसेंटाइल हैज अ लॉट ऑफ कॉलेजेस टू ऑफर, ठीक है। यूबीएस हो गया, केजे सुमाया हो गया, तापमी हो गया, ठीक है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया। नाउ ऑल दीज कॉलेजेस आर काइंड ऑफ अंडर सेम कैटेगरी, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली से केजे सुमाया या तापनी कहीं जाते हो तो आप ज्योग्राफिकली बहुत दूर जा रहे हो घर से। अगर यहाँ पे 19-21 का फर्क भी है प्लेसमेंट्स में, अगर यहाँ बेटर भी है तो भी आई डोंट थिंक आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए इतना ज्यादा। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ब्रांडिंग, ब्रांड की जो वो वैल्यू है मार्केट में इन सब कॉलेजेस की लगभग लगभग सेम है, राइट। तो घर से इतना दूर क्यों जाना, राइट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपने घर आना होता है जब आप यहाँ इन कॉलेज में हो, तो यहाँ से आपको घर आने के लिए प्लान करना पड़ेगा। बट अगर आप दिल्ली में हो तो आप किसी भी वीकेंड में अपने यहाँ जा सकते हो। सो लोकेशन डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आपको उसके हिसाब से देखना ही चाहिए। सो लोकेशन इज अनदर फैक्टर, राइट। व्हाट एल्स डू यू थिंक इज अ फैक्टर? और कुछ फैक्टर होता है? आपको मेरी आवाज आ रही है? इज माई वॉइस ऑडिबल? ऑलराइट, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एमबीए लाइफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? नाउ देयर आर सम कॉलेजेस, अब प्लीज इस बात को अच्छे से समझना, देयर आर सम कॉलेजेस विच आर डिपार्टमेंट्स इन यूनिवर्सिटीज। फॉर एग्जाम्पल यूबीएस हो गया, एलबीएस हो गया, डीएफएस हो गया, डीएससी हो गया। ये क्या है? ये डिपार्टमेंट्स है। व्हेन आई से डिपार्टमेंट्स, ऑल दीज आर मेजरली स्टूडेंट रन कॉलेजेस। जो स्टूडेंट कमिटीज होती हैं वो इनके सब प्लेसमेंट्स वगैरह, समर प्लेसमेंट्स वगैरह सब कुछ रन करती है। स्टूडेंट रन कॉलेजेस होती है हमारी, ठीक है। अच्छा, फीस इज इन द ROI ओनली, राइट। तो ये स्टूडेंट रन कॉलेजेस हैं। अब being from UBS myself, I can tell you one thing कि UBS is one of the best colleges in terms of ROI. Yes, ठीक है। आपकी 1 लाख की फीस है और लगभग 10-11 का एवरेज पैकेज है, राइट। दैट इज वन फैक्टर। बट द क्वालिटी ऑफ MBA, राइट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आपको बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में मिलती है, जैसे फोर हो गया, फोर, खास IMT तो चलो बहुत अच्छा है फोर से, ठीक है। फोर हो गया, IMI हो गया, ये क्या है? प्राइवेट कॉलेजेस है। इनकी अगली साल की प्लेसमेंट्स किसके बेसिस पे आती है? अगले साल की एडमिशन किसके बेसिस पे आती है? सारी प्लेसमेंट्स के बेसिस पे आती है, समर प्लेसमेंट्स के बेसिस पे आती है। तो इनके अंदर जो क्वालिटी ऑफ MBA, जो केस स्टडीज वगैरह होती है, वो मच बेटर होती है एज कम्पेयर टू दीज अदर कॉलेजेस जो मैंने आपको मेंशन किए। अब इफ यू आर समवन जिसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए तो आपको ये कॉलेजेस चाहिए, बट इफ यू आर समवन इसके लिए ROA इंपॉर्टेंट है तो उसको दूसरे कॉलेजेस चाहिए। अब ये आपको ट्रेड ऑफ करना है, या आपके लिए कोई और तो ट्रेड ऑफ नहीं कर सकता। यू विल हैव टू डिसाइड इट योरसेल्फ। नाउ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर, राइट। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, परसेंटाइल फॉर यूएसबी, पहली बात तो वो UBS है, ठीक है। इसके अंदर 4 कोर्सेज ऑफर होते हैं: जनरल, IB, HR और एंटरप्रेन्योरशिप। तो जनरल के लिए कट ऑफ जाती है 91 92, IB के अराउंड कट ऑफ जाती है 89 से 90, HR के लिए जाती है 85 से 86 और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाती है आपकी 81 82। जनरल के अंदर ही आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं: मार्केटिंग, फाइनेंस और ऑपरेशन, ठीक है। आपके आपके आसपास, राइट, आपके आसपास ये चीजें बड़ी ध्यान से आपको देखनी है कि आप कौन सी, ये ड्यूल MBA प्रोवाइड करता है। ड्यूल MBA मतलब मेजर और माइनर लेना होता है आपको, ठीक है। तो आपको मेजर, जैसे मैंने मार्केटिंग मेजर लिया था, ऑपरेशंस माइनर लिया था, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये मैं बात कर रहा हूँ इन कॉलेजेस की। अच्छा, मैं आपको एक और बात सच बता दूं बहुत ज्यादा, कि जो आप बात करते हैं कि हमें अपने प्रोफाइल को देख के, आपने जैसे ऋषभ आपने मेंशन किया कि प्रोफाइल को देख के कॉलेज चूज करना चाहिए, राइट। कि वहां पे कैसी कंपनीज आती हैं इसको देख के सब कुछ डिसाइड करना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपके Tier 2 कॉलेजेस होते हैं ना, इन सब कॉलेजेस में बहुत 19-21 फर्क पड़ता है द टाइप ऑफ प्रोफाइल्स यू गेट,
राइट। ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से मैंने आज तक कोई ऐसा टीयर 2 कॉलेज सुना ही नहीं है जो आपको कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की प्रोफाइल दे देगा। नहीं होता ऐसा। वो सिर्फ टीयर 1 कॉलेजेस में जैसा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो IIM, सी और XLRI, इनकी फाइनेंस को बेस्ट माना जाता है। राइट। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि ए और भी अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं सब। वो ऑब्वियसली टीयर 1 कॉलेज है, आउट ऑफ लीग, बट इफ वी हैव टू रैंक, इन दो कॉलेजेस को बहुत बेस्ट माना जाता है। राइट। तो एक एक करके जाएंगे यश, पहले मैं इसके बाद बात करता हूँ, ठीक है। कैट की मैंने एग्जाम की, उसको ओमेट वाले सेक्शन में लेता हूँ जो आपका क्वेश्चन है। राइट। तो अगर कॉलेजेस की बात करूं तो टीयर 2 कॉलेजेस में ना यार प्रोफाइल्स का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि जिनके पास मार्केटिंग मेजर होती है, वो फाइनेंस वाले में अप्लाई कर देते हैं, फाइनेंस मेजर वाले मार्केटिंग वाले में अप्लाई कर देते हैं। और जो रोल्स मिलते हैं आपको कंसल्टेंसी वगैरह के, उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड तो सबने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना होता है। राइट। तो ठीक है, यस वी शुड कीप इन माइंड अवर प्रोफाइल एंड एवरीथिंग, बट ठीक है, ये होते हैं। अब अगर मैं HR की बात करता हूँ, जैसे आपने रीता आपने पूछा HR के लिए, अब कोर HR के जो रोल्स होते हैं ना, कोर HR के रोल्स, वो कहाँ कहाँ आते हैं? एक्सेल के आते हैं HR के रूल्स, कोर HR के जो माने जाते हैं इंडिया में, टिस में आते हैं, MDI में आते हैं, SCMHRD में आते हैं। ये 4 कॉलेजेस हैं जो HR के लिए बेस्ट माने जाते हैं इंडिया में। राइट। तो अब इसके अलावा जो भी कॉलेजेस होते हैं, जैसे मैं जो आपको HR में कराते हैं, वो क्या करते हैं, आप एच सी व्हेन वी टॉक अबाउट HR में भी बहुत सारे आगे फंक्शंस होते हैं। लेबर मैनेजमेंट एक फंक्शन होता है आपका, राइट। पे आउट रोल्स एक और होता है। अरे IIMs में भी HR होता है। ये 4 बेस्ट माने जाते हैं। IIM रोहतक का HR बहुत अच्छा माना जाता है, IIM रांची का HR बहुत अच्छा माना जाता है। ये मैं इंडिया के टॉप 4 की बात कर रहा हूँ, जो चार टॉप के 4 माने जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि आपको हर हर कॉलेज में आपका HR होता ही होता है। राइट। बट जो कोर प्रोफाइल्स मिलते हैं वो इन 4 को प्रोफाइल सबसे कोर प्रोफाइल्स मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जगह आपको HR के कोर प्रोफाइल ही मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेबर मैनेजमेंट इज वन ऑफ द टफेस्ट रोल टू गेट। राइट। और जो बेस्ट ऑफ द जो टफेस्ट कॉलेजेस हैं हमारे, वो हमारे यही वाले हैं। ठीक है। अब जैसे टिस्क का कोर्स ही लेबर मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट होता है। राइट। सो टिस्क के अंदर एक ही चीज कॉलेज अप्लाई करते हैं जिसकी प्लेसमेंट अच्छी है, नथिंग एल्स। ठीक है, ये चीजें होती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब जैसे मैंने पूछा कि बेस्ट मार्केटिंग कॉलेज कौन सा है, ऐसा ये सब मिथ होते हैं कि बेस्ट मार्केटिंग कौन सा है, बेस्ट फाइनेंस कौन सा है। जो मैंने आपको बताया टीयर 2 में सारे कॉलेजेस सेम होते हैं, प्रोफाइल्स भी सेम आती है, सब कुछ सेम आता है। कि अब मैं बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट क्यूब एक कंपनी है, ठीक है। वो क्या करते हैं, रिसर्च एनालिस्ट का प्रोफाइल देते हैं आपको, रिसर्च एनालिस्ट का। अब जो ये प्रोफाइल है, इसी में मार्केटिंग वाले रोल लोग भी थे, इसी में फाइनेंस वाले लोग भी थे, इसी में फार्मा वाले लोग भी थे। ठीक है। एंड जो फार्मा के लोग थे वो नारसी मुंजी से आए थे, जिन्होंने 20 लाख लगाए थे, उनको भी सेम पैकेज दे दिया गया था। ठीक है। उसके अलावा जो आपके पास फाइनेंस वाले आए थे, वो फाइनेंशियल फाइनेंशियल सेक्टर में चले गए थे इनके। जो मार्केटिंग वाले आए थे वो मार्केटिंग सेक्टर में चले गए थे, और बाद में वो आपस में चेंज भी हो गए थे। राइट। कुछ लोग यहाँ से वहां चले गए, कुछ लोग वहां से यहाँ आ गए। तो उसका इतना फर्क ही नहीं पड़ता। राइट। अब इंडिया में टॉप का फाइनेंस कॉलेज IIM कैलकाटा, XLRI, IIM बैंगलोर, IIM अहमदाबाद, दीज आर ऑल बेस्ट। राइट। बट आप लोगों को इस वक्त ये नहीं सोचना कि मुझे मेरे को कौन सा, इस वक्त तो आपको फॉर्म्स भरने हैं ना। बाद में जब आपके पास कन्वर्जन आ जाएंगी तब सोचना कि इनमें से कौन सा बेस्ट है मेरी मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। योर फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन गेटिंग अ गुड कॉल फ्रॉम अ गुड कॉलेज। अंडरस्टैंड दिस बात, नथिंग एल्स। आपका जो पहला फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मेरे को अच्छे कॉलेजेस से कॉल कौन सी आएगी। राइट। अब जो मैंने आपको ये फैक्टर बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके लिए। ठीक है। अब इसमें ही एक फैक्टर, जैसा मैंने बताया, अगर आप टीयर 1 कॉलेज कर रहे हैं तो उसमें प्रोफाइल्स ऑफर्ड देख सकते हैं कि आपको अगर किसी प्रोफाइल में स्पेसिफिकली जाना है तो वो कौन से कॉलेज आपको प्रोफाइल देते हैं। टीयर 2 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता प्रोफाइल्स का, लेकिन टीयर 1 में सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है प्रोफाइल्स का। इसके अलावा किसी भी कॉलेज के बारे में जो डिटेल जानकारी आपको दे सकते हैं वो सिर्फ उनके वहां के लोग ही दे सकते हैं। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, किसी मतलब मुझे नहीं पता कि अब सिंपल सिंपल सी बात है, हमें नहीं हम मुझे नहीं पता कि किसी स्पेसिफिक कॉलेज में वहां के मार्केटिंग की क्या क्या कंडीशन है या वहां के फाइनेंस की क्या कंडीशन है। आपको जो भी इससे बेस्ट हेल्प मिलेगी लिंक्डइन पे उनके एलएम से कनेक्ट करके मिलेगी। एंड दिस इज अ टफ टास्क टू डू, आधे लोग नहीं रिप्लाई करते। आपको मैं रिप्लाई मैसेज कर दूं कैट की तैयारी कैसे करनी है लिंक्डइन पे, शायद आप में से आधे लोग नहीं रिप्लाई करोगे। तो जो लोग एक बार कहीं पहुंच जाते हैं, दे आर वेरी लेस रिस्पॉन्सिव टू दीज थिंग। देयर सम पीपल आर नॉट।
राइट। सो आपको इसमें मत्था मारना ही पड़ेगा, एंड लिंक्डइन इज द बेस्ट वे टू नो एनी कॉलेज, रिमेंबर दिस पार्ट। राइट, और ये आपको रिसर्च अपने ही एंड पे करनी पड़ेगी, किसी और के एंड पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आपके ये जो फैक्टर्स हैं ये मैंने लिख दिया। अब देखो, आप बड़ा से एक मैं आपको और बताऊं, अगर आप गूगल करोगे, सिंपल गूगल कॉलेज इज इन द कैटेगरी ऑफ 80 to 90 परसेंटाइल, सिर्फ ये पॉइंट गूगल करोगे ना कि कॉलेज बताओ 80 से 90 परसेंटाइल, आपको सारे ऑप्शन आ जाएंगे। कॉलेज दुनिया, ठीक है, ये वेबसाइट है जिसके ऊपर हर दूसरे दिन जो है हर कॉलेज का फॉर्म अपडेट होता रहता है, कौन सा फॉर्म आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। हालांकि हम अपने इंस्टाग्राम पे बहुत रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, अगर आप में से कोई इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करता है तो आपको पता होगा जो भी कॉलेज आता है वी फॉलो इट। बट आपको इतनी नोटिफिकेशन आती है दिन में कि वो मिस हो जाता होगा। तो आपको प्लीज मेक इट अ हैबिट दैट एवरी सेकंड डे गो टू दिस वेबसाइट एंड सर्च फॉर द बेस्ट कॉलेजेस, या फिर सर्च फॉर द कॉलेजेस जिनके फॉर्म्स आउट है, जिनके फॉर्म्स आउट नहीं है। वी गिव रिमाइंडर्स बट एट द एंड आपने भरनी है ना ये चीजें, तो ये आपको देखना है। राइट, अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमारे जो आईएम्स है, तीन कैटेगरी के माने जाते हैं, राइट, ओल्ड, न्यू और बेबी। सबसे पहले ओल्ड में क्या आता है आपके पास, ब्लैकी, ये आपने सुनी होगी टर्म, बेंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कलकत्ता, कोझिकोड, इंदौर, ये सबसे बेस्ट आईएम माने जाते हैं, सबसे पुराने आईएम्स इंडिया के ये। ठीक है, अब इसमें ऐड हो जाएगा आईएम मुंबई। राइट, नाउ वी आर नॉट वेरी क्लियर अपॉन दिस बात की आईएम मुंबई की जो एक एडमिशन लेने की प्रोसीजर रहेगी वो क्या रहेगी। मतलब हमें उम्मीद है कि नॉन इंजीनियर्स भी अलाउ होंगे, सिंस इट इज नॉट अ निटी एनी मोर, निटी हैज बीन कन्वर्टेड टू आईएम मुंबई, but we are not clear about this, and to be honest no one is, everyone is speculating right now, no one is clear about this part, so we have to wait for the official college notification। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपके पास जब आपने कैट का फॉर्म भरा तो एक बड़ा सारा पेज आया था जिसमें आपको सारे फॉर्म्स भरने थे, आई एम जम्मू पीएचडी, आई एम अहमदाबाद पीजीपी, आई एम अहमदाबाद पीएचडी, उसमें मैंने कहा था सब टिक कर दो, उसमें आई एम मुंबई था, नहीं था, है ना, क्योंकि वो प्रोसेस अभी उनका बहुत ज्यादा क्लियर है ही नहीं। राइट, तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें अब जब तक वो उनको ही नहीं पता, कैट अथॉरिटीज ने नहीं दिखाया, तो आप कोई कोई भी कैसे बता देगा, कोई बता ही नहीं पाएगा यार, जब तक कॉलेज ने नहीं बताया। तो इट दीज आर ऑल स्पेकुलेशन, और आपको उसके ऊपर अपना दिमाग भी खर्च नहीं करना। राइट, ये ओल्ड आईएम्स है, न्यू आईएम्स में अपने कौन से आते हैं, रोहतक, उदयपुर, काशीपुर, शिलोंग, त्रिची, ठीक है, ये सब कॉलेजेस आते हैं हमारे। और भी जैसे लिस्ट है आगे, नागपुर तो न्यू में बेबी में आता है, नागपुर, अमृतसर, ठीक है, बोध गया, सिरमौर, ये सब कुछ आपके पास बेबी में आते हैं। राइट, अब इसके अंदर भी आपको आईएम रोहतक का फॉर्म अलग से भरना पड़ता है, ये इकलौता आईएम है जिसका फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ता है। दे हैव केप्ट अ सेपरेट टैब फॉर देम, मतलब फॉर्म तो आपको बाद में जिसकी कॉल्स आएंगी सबके अलग से भरने पड़ेंगे एसओपीज, बट वो पेड नहीं होंगे, आईएम रोहतक का पेड होगा। राइट, आई एम रोहतक का फॉर्म पेड होता है, वो आपका जब नोटिफिकेशन आएगी बताया जाएगा कि आई एम रोहतक के फॉर्म आउट हो गया, तो आपको अलग से भरने पड़ेंगे, दे हैव सेपरेटेड देमसेल्व्स। राइट, तो यहाँ पे नागपुर आ गया, उसके बाद आपके पास बोध गया आ गया, ठीक है, उसके बाद आपके पास सिरमौर आ गया, जम्मू आ गया, अमृतसर आ गया। ठीक है, ये सब आपके जो है नए वाले वो बने थे, सॉरी बेबी वाले आइम्स बने थे। अब अगर जनरल स्टूडेंट्स की बात करूं तो इसकी कट ऑफ तो अब हर कॉलेज टू प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे टीयर 2 कॉलेज में प्रोफाइल इतना मैटर नहीं करता, इन कॉलेज में बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो हम इसकी एक वो लगा ही नहीं सकते, किसी बच्चे को अगर 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस है तो हो सकता है उसको बेंगलोर की कॉल 97.5 पे भी आ जाए, और हो सकता है एक फ्रेशर को 99.5 पे भी ना आए। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हम इसको जनरलाइज तो नहीं कर सकते। बट अगर मैं एक जनरल कैटेगरी देखूं तो इसके लिए हम कहते हैं कि अराउंड आपको 98 99 चाहिए होता है, इसके लिए अराउंड इनके लिए अराउंड 95 चाहिए होता है, और इनके लिए अराउंड 91 92 चाहिए होता है। ठीक है, तो अब इन सब कॉलेज की डीप डाउन अगर आपको रिसर्च करनी है, इनकी वेबसाइट पे जाके प्लेसमेंट रिपोर्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी। राइट, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी समटाइम कि आई बोध गया का एवरेज पैकेज बता दो। मैंने याद थोड़ी कर रखा है डेटा, मैं भी गूगल करता हूँ। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट आस्क मी कि स्नैप की लास्ट डेट कौन सी है। यार इतने सारे फॉर्म चल रहे होते हैं, कई बार मुझे ही नहीं याद रहता, मुझे मैं कहता हूँ कि मेरे को गूगल करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं गूगल कर रहा हूँ, आप भी गूगल कर लो। यू आर सो सो क्या कहते हैं उसको, अप टू डेट नाउ डेज, चैट जीपीटी आपके हाथ में है। राइट, तो उसको यूटिलाइज इट ना अच्छे से। सो दीज आर द फैक्टर्स जिसपे आपको कॉलेज के फॉर्म डिसाइड करने चाहिए। राइट, आप इस बात सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यही होता है कि आपकी परसेंटाइल कितनी आ रही है और आपको क्या लगता है आपकी औकात कितनी है, सिंपल एज दैट। उसके ऊपर आपका बजट कितना है, हर किसी ने एक बजट लिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बजट आपका। ठीक है,
अब कोई है खानदानी रईस, उसको नहीं फर्क पड़ता कि उसने 25,000 के फॉर्म भर दी, बट अगर आप मेरे ऐसे गरीब हो तो आपको फर्क पड़ता है एक एक फॉर्म का। ठीक है, तो वो भी अब आपको ही डिसाइड करना है, कोई और तो नहीं डिसाइड करना ना अपने लिए। और ये सब कुछ भरते हुए एक बात का ख्याल रखना कि बैकअप कॉलेजेस में आपका ये फाइनल अटेम्प्ट है, या आपके पास अभी कैपेबिलिटी है और अटेम्प्ट्स देने की। सिंपल एज दैट, राइट। अब मैं आपको एक और बात बड़ी क्लियर कर देता हूँ कि हु शुड रीअटेम्प्ट कैट एंड हु शुड नॉट रीअटेम्प्ट कैट। अब हालांकि कभी जरूरत ना पड़े किसी को, रब ना करे किसी को भी जरूरत पड़े, बट बीइंग वेरी क्लियर, अगर आपकी, सिंपल सी बात है, आपके सबसे सबसे बड़ी बात होती है आपकी फैमिली सपोर्ट, राइट। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है यार कि हाँ हाँ तुम दोबारा कैट दो, कोई चक्कर नहीं है, तो उस वक्त कुछ नहीं मायने रखता, एज वगैरह सब कंपनसेट हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। इसके बाद सेकंड करता है आपने कितना पोटेंशियल हार्नेस कर लिया अपना। ठीक है, यानी कि अगर आप एक ऐसे बच्चे हो लेट से जो तीसरी बार कैट दे रहे हो, और आपको पता है कि आपने लगा लिया भाई, पूरा जोर लगा लिया था, मैंने लास्ट टाइम मेरी परसेंटाइल आई 90 है, अगली बार अगर मैं दूंगा तो शायद 92 93 आ जाएगी, तो आपको नहीं भरना चाहिए कैट दोबारा। बट अगर आपको लगता है कि मैंने यार अभी ज्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, मेरी 85 आ गई, अगली बार 95 आ जाएगी, तो आपको करना चाहिए ट्राई। आप एक बात को याद रखो कि जो कॉलेज आपको लगभग 82 83 परसेंटाइल पे मिलता है, वर्सेस जो कॉलेज आपको 91 92 परसेंटाइल पे मिलता है, उनकी प्लेसमेंट्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, तो आपको वो एक साल का ट्रेड ऑफ नहीं करना उस चीज में। बट जो आपको 95 96 पे मिलेगा वो आप डेफिनेटली बेटर होगा। तो अब यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हो नहीं पहुंच सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। कोई डाउट है किसी का इसके रिगार्डिंग, या कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जो मुझे मार्केटिंग के लगता है वो होता है माइका, अगर आपने इसको सुना होगा। इसके लिए आपको कैट प्लस माई कैट दोनों देने पड़ते हैं, राइट। अगर मैं प्रोफाइल्स की बात करूं तो इस कॉलेज में वो प्रोफाइल आते हैं मार्केटिंग के जो आपको शायद कहीं और नहीं मिलते, कुछ आईएम्स में भी नहीं मिलते। कोर मार्केटिंग प्रोफाइल जिसमें आपकी क्रिएटिविटी यूज होती है, एडवर्टीजमेंट प्रोफाइल जो आपके पास यहाँ आते हैं, वो किसी और कॉलेजेस में भी नहीं आते। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु ड्रॉप IIM, Kozhikode, Shillong, these colleges to go into MICA. But that is a very personal decision because those people are very clear that they want those certain profiles. Right. Again, what is the present situation? What were the placements last year? You will have to connect with an LM and discuss that. Right. No one on internet can tell you. मैं आपको बता दूं, इंटरनेट पे इतने गैस आर्टिकल्स होते हैं, हर बंदा दिन के 3 वीडियोस डाल देता है कॉलेज के बारे में, जस्ट बिकॉज उनको जेनरिक जानकारी होती है। राइट, तो जेनरिक जानकारी से आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड हो सकता, आपका फ्यूचर बड़ी कोर चीज से होता है। कैट में लगभग 85 परसेंटाइल चाहिए होती है, उसके बाद इनका अपना टेस्ट होता है। ठीक है, अपना जो माई कैट होता है 2 बार दे सकते हो आप, और दोनों में से आपका बेस्ट अटेम्प्ट काउंट होता है, दोनों के पैसे अलग भरने पड़ते हैं आपको। ठीक है, एक बार होता है माई कैट आपका अक्टूबर नवंबर नवंबर में शायद, और एक बार होता है शायद जनवरी में, फरवरी जनवरी के एंड में। राइट, तो इसमें आपके पास जो एप्टीट्यूड टेस्ट भी आता है, प्लस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आता है, प्लस साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आता है, 3 तरह के टेस्ट आपने देने होते हैं इसके अंदर, तब जाके आप क्लियर होते हो। राइट, तो हाँ वही 2 दिसंबर है, 27 जैन जो मैंने बताया था, हमने पोस्ट भी डाली थी इसकी इंस्टाग्राम पे। राइट, तो ये सब फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज डिसाइड करना है। राइट, हमें यूजुअली देखा गया है कि आपको कम से कम भी 5 ऑप्शंस तो रखने चाहिए। राइट, यू डोंट नो हाउ गुड और बैड योर लक इज, आपको 5 अपने ऑप्शंस तो रखने चाहिए। राइट, अब अगर मैं बात करूं कुछ कॉलेज की कि एनमैट के थ्रू क्या भरना चाहिए, स्नैप के थ्रू क्या भरना चाहिए। ठीक है, अब एनमैट के थ्रू अगर बात करी जाए, इनका सबसे बेस्ट कॉलेज तो नारसी मुझे मुंबई है। ठीक है, उसके अंदर यार अब देखो, आप मेरे से पूछ रहे हो फीस बताओ कोझिकोड की। अब फीस मैं कैसे बताऊं? ठीक है, अब फीस तो आप मतलब गूगल कर लो, फीस कोझिकोड की होएगी लगभग 26 लाख, बट मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं याद ऐसे यार। ये चीजें गूगल करा करो, फीस कितनी है। कट ऑफ कोई नहीं बता सकता कोझिकोड, कोझिकोड पे मैंने 93 पे भी लोग जाते देखे हैं, 98 पे भी रिजेक्ट होते देखे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल कैसे, नॉट ओनली दैट। माइका के दोनों ही देने चाहिए यार। ठीक है, अब आपके पास नासिक मुंबई में क्या है, 3 वो जो होती है, एक होती है उनकी जनरल एमबीए, एक होती है एचआर, और एक होती है फार्मा। ठीक है, जनरल के जो पिछली बार कट ऑफ गई थी शायद 231 थी, एचआर की 4 एक नंबर कम थी, और शायद फार्मा की आई थिंक 212 13 थी, इतनी कट ऑफ थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, सच में मुझे याद नहीं है, गूगल करना मिल जाएगा।
ठीक है। अब अगेन जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, इज इट वर्थ टू स्पेंड सो मच फॉर एनएम? it depends upon what other options do you have. Let's say you have an option like NM, and then you have an option like KJ Somaya, then you have an option like, let's say, a tier 2 college only, not a tier 1 college. आप देखो, अगर आपको एनएम के सामने कोई और tier 1 मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली tier 1 में जाऊंगा। नारसी मुंजी का बैच साइज बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से उनकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी डाइल्यूट हो गई है, थोड़ी सी पिछले टाइम में, राइट। और उनकी जो एवरेज प्लेसमेंट है वो भी 16-17 के आसपास है, राइट। तो आपको जो एनएम केजे जो ये सब ऑप्शंस है, अगर मेरे पास एनएम और जिम्बी का ऑप्शन है तो मैं एनएम ही जाऊंगा, राइट। आर नेन आरसी मुझे एक बेटर ब्रांड नेम माना जाता है, जिम्बी की प्लेसमेंट्स इससे नेक टू नेक है, थोड़ी बेटर ही होगी मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा ख्याल है। बट एनएम के जो वो होती है नेटवर्किंग वगैरह होती है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। एक सेकंड। ये सब होता है। अब अगर मैं ऐसे नहीं, एस आई बी एम पुणे इज मच बेटर देन एनएम। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एस आई बी एम पुणे इज बेटर एज कंपेयर टू नारसिंह, राइट। एनएम इज नॉट डिफरेंट, एनएम इज जस्ट अ नेम, राइट। स्नैप का मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्नैप के अंदर मुझे पर्सनली एक एस आई बी एम पुणे उनका बेस्ट कॉलेज लगता है। दूसरे नंबर पर लगता है एस सी एम एच आर डी। ये इनके टॉप कॉलेज है, वर्थ कॉलेज है। इसके बाद जो बाकी दो कॉलेज है वो उन्हें बैकअप ही लगते हैं हमेशा, एस आई आई बी और एस आई बी एम बेंगलोर, ठीक है। ये दोनों लगभग लगभग टीयर 2 के कॉलेज है, इनके कंपेरेबल आपको और ऑप्शंस भी मिल जाते होते हैं, तो वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए लोकेशन बॉयज का ब्रांड नेम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये दो उनके मेन कॉलेज है, ये दो उनके बैकअप रख सकते हो, ये चार ही है। बाकी अगर किसी को ऑपरेशंस वगैरह में बहुत है तो एस आई ओ एम, राइट। ये भाई सक्षम, मैंने तो कहा ही है कि एस आई बी एम पुणे में को एनएम से बेटर ब्रांड मिल सकता है। एनएम जो है डाइल्यूट हो गया पिछले कुछ टाइम में, उन्होंने बैच साइज बहुत बड़ा कर दिया है। एस आई बी एम पुणे, आई इन माई ओपिनियन पर्सनली इज बेटर देन एनएम, ठीक है। बट आपको मैं ये भी बता दूं कि इफ यू आर अ फ्रेशर, 99.23 पे जाके कहीं आपको एस आई बी एम पुणे के सेफ चांसेस ऑफ कन्वर्ट मिलेंगे, राइट। एस आई बी एम पुणे का जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वन ऑफ द स्ट्रिंजेंट माना जाता है। हमारे पास एक स्टूडेंट था जिसके 99.9 99.994 थे, 99.95 थे, ऐसे परसेंटाइल थे, एंड ही कुडंट कन्वर्ट अपना सिम्बोयसिस पुणे ड्यू टू एनी रीजंस एक्स वाई जी। तो उनके जो बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोसेसेस होते हैं चीजों को लेके, राइट। तो आपको बड़ा उसकी तैयारी भी बड़े अच्छे से करनी पड़ेगी, सब कुछ बड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा, राइट। तो ये आपके फैक्टर्स है जो आपको डिसाइड करेंगे। लास्ट डेट्स आपको आराम से मिलती ही रहेगी, लेकिन अब आपको देखना है। अगर एनमैट में बात करूं, आपके पास 5 ऑप्शन तो देते ही है वो भरने के लिए आपको। तो मेरा मानना है कि उनका जो मेन नार्स मुझे है वो भरना चाहिए, रिम्पी, केजे, तापमी, ये उनके मस्ट गो कॉलेज है। फिर उसके बाद आपकी अपनी श्रद्धा अनुसार है, राइट। या मैं ये क्वेश्चन आंसर नहीं करूंगा कि मेरे 10th में इतने 12th में इतने, बिकॉज वंस आई स्टार्ट डूइंग दिस एवरी वन विल आस्क मी दिस, राइट। वो आप अपना सिंपल सी चीजें करो, ठीक है। अगर आपका, बस मैं बता दूं कि आपका देखो 10th और 12th की मेजरली परसेंटेज मानी जाती है बहुत सारे कॉलेजेस में। ग्रेड की इतनी ज्यादा वेटेज बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं है। और एक और बात भी बता दूं कि जो आपके 10th 12th ये सबकी वेटेज है, ये ज्यादातर इनका सब कुछ टीयर 1 कॉलेज में ही होता है। टीयर 2 कॉलेज में तो इतना पंगा भी नहीं होता आपके प्रोफाइल का, टीयर 1 कॉलेजेस में होता है। बट यस, अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो यू स्टैंड अ चांस, अदरवाइज यू डोंट स्टैंड अ चांस। वो अगेन आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो डिफरेंट प्रोग्राम है उनका, डिफरेंट प्रोग्राम है, ठीक है। अब एसपी जैन अगर मैं बात करूं, देखो यार, एसपी जैन आपको प्रोफाइल बेस्ड कॉल भी देता है और परसेंटाइल बेस्ड कॉल्स भी देता है। जो आपको प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स है वो 85 88 पे भी मिल जाती हैं कई बार, और जो परसेंटाइल बेस्ड कॉल्स है वो 97 से ऊपर ही सेफ माना जाता है नॉर्मली, राइट। अब एसपी जैन ठीक है। अब एसपी जैन है वो, अब आप तभी डिपेंड करोगे अगर आपका, देखो प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स किसको आते हैं, जिनका वर्क एक्स बहुत ही रेलिवेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2-3 साल से फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो और आप एसपीजन फाइनेंस में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपका प्रोफाइल बहुत ही रेलिवेंट है, ठीक है। एक्सएलआर जमशेदपुर इज फार बेटर देन एसआईबीएम पुणे। एक्सएलआर जमशेदपुर अगर मैं बात करूँ तो वो एबीसी कैटेगरी का माना जाता है। एक्सेल एक्सेल में जो प्रोफाइल्स आते हैं वही प्रोफाइल सी में, बी में और ए में आते हैं। सो ये उनका कंपेरेबल कॉलेज है,
राइट। एक और जो कॉलेज ने लीक किया जो उनको पता नहीं होता लोगों को, वो JBIMS है। टू गेट एडमिशन इनटू दैट इज अ रियली टफ जॉब, राइट। महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू 99.98 लेने होते हैं इफ यू आर अ नॉन महाराष्ट्रियन, राइट। बट ये उन लीग का कॉलेज है, और JBIMS की जो फीस है, ROI इंडिया का अगेन FMS के बाद शायद बेस्ट है, राइट। तो इसके बारे में स्टडी करना थोड़ा सा, इस कॉलेज के बारे में हमने यूट्यूब पे वीडियो भी डाली हुई है फॉर JBIMS, डेफिनेटली आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं, राइट। IITs आपकी MBA कराते हैं, और IITs में बहुत अच्छी MBA होती है, अगर मैं आपको बता दूं तो। जो IIT मुंबई और IIT दिल्ली, ये तो टॉप के माने जाते हैं। इसके अलावा जो आपके IIT मद्रास, राइट, बाकी सब IITs में अच्छी MBA होती है, राइट। बाकी सब इंजीनियर, ये दोनों नॉन इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका आई एम नॉट, मुझे याद नहीं है अभी डायरेक्टली क्या सीन था, राइट। गूगल करोगे आपको इजीली मिल जाएगा। बट IITs आर वेरी गुड। IITs की फीस भी कम होती है, राइट, और उसके पास वो भी होती है। अब सेफ परसेंटाइल यार, मुंबई के लिए आपका अराउंड 98.67 जाता है, दिल्ली के लिए भी 98 के करीब जाता है, लेकिन अगर आपका अच्छा प्रोफाइल है तो, नहीं तो 99 के अराउंड। मुंबई दिल्ली हलवा नहीं है, हर किसी को नहीं मिलता, लोगों को लगता है कि IIT है, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट बेट्स पीपल कैन गेट, ठीक है। IIT कैट के थ्रू ही होती है, ठीक है। जेंडर डाइवर्सिटी का बहुत फर्क पड़ता है, खासकर जो Tier 1 कॉलेज होते हैं उसमें जेंडर डाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, राइट। IIT कैट के थ्रू ही होती है, IIT का कोई डिफरेंट एग्जाम कहीं पे भी नहीं होता, राइट। IITs आर द बेस्ट बेट्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि IIT मद्रास में और एक और IIT में, क्यों नाम भूल रहा हूँ, वहां पे आपका सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होता, तो वो भी कंसिडर कर लेना चाहिए, ठीक है। ये बड़ी होती है, कई लोगों के साथ जैसा ऐसा हो रहा होगा कि शायद किसी एक सेक्शन में नंबर नहीं आ रहे, बाकी में आ रहे हैं। तो ये, हाँ, खड़गपुर में, राइट, खड़गपुर में आपने सेक्शन वगैरह देख लेना। JBA और IMT कैट का स्कोर, IMT तो बहुत स्कोर लेता है, IMT तो GMAT भी लेता है, जैट भी लेता है, और वो भी लेता है, ठीक है। और जो JBIMS है, JBIMS का सिंपल फंडा होता है, JBIMS में GDPI होती नहीं है, वो आपको सिर्फ स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देता है। और जो स्कोर्स वो एक्सेप्ट करते हैं, उन स्कोर्स के बेसिस पे वो टॉप के 2-3 बच्चे हर उससे लेते हैं, यानी कैट के जो टॉप के 2-3 टॉपर होंगे उनको अप्लाई ऑफर होता है, MSCT के टॉप के 2-3 बच्चों को वो ऑफर होता है, ऐसे करके बस वो ऑफर करते हैं अपनी सीट्स। 18 सीट्स होती है नॉन महाराष्ट्रियंस के लिए, राइट। तो वही मैं कहा, जो भी वो आपको एग्जाम्स लेते हैं उसके सिर्फ टॉप के बच्चे लेते हैं, वो नथिंग एल्स, ठीक है। यस, दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द टफेस्ट टू गेट इनटू, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको अगली जो मेन चीज है कि आपको कैसे वो तैयारी करनी चाहिए एज कंपेयर टू एनीथिंग एल्स, ठीक है। देखो, आप कैट की तैयारी इस वक्त कर रहे हो, राइट। कैट में अब आपके बेसिक्स भी आते हैं, सब कुछ आता है, वो कैप भी आता है। अगर आप साथ साथ अपने रूटीन में एक एनमैट या एक स्नैप का मॉक देना शुरू कर दोगे, तो उसमें कोई वो नहीं होगा, आपकी कैट की उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा ही होगी आपकी प्रेप। साथ साथ आपके बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा उसमें क्या आता है क्या नहीं आता। सो अगर आपको ये चीजें करनी है कर लो, लेकिन एक बात याद रखो कि अगर इंडिया में 100 कॉलेज MBA कराते हैं तो उसमें से 95% कैट के थ्रू ही होते हैं, और ये 5% होते हैं जो बाकी एग्जाम्स के थ्रू होते हैं। सो इट इज नॉट अ वाइज डिसीजन टू जस्ट लेट गो ऑफ दिस एंड गो फॉर दिस, राइट। यस गणनेश्वर, यू कैन अप्लाई फॉर SP। मैंने आपको ऑब्वियसली बताया दैट देयर आर टू वेज इन विच दे ऑफर द एडमिशन, फर्स्ट थ्रू द प्रोफाइल बेस्ड एंड सेकंड थ्रू द परसेंटाइल बेस्ड। So be confident upon your percentile. If you don't think you have a very relevant work ex for experience, don't worry about that part, right? So it is not wise. I'll never advise this to anyone that just let go of CAT and focus upon other exam until or unless you are not getting even a double digit score in CAT mocks. वो अलग बात है, right? Otherwise you shouldn't, right? So keep preparing these alongside, but do not change your or shift your focus from the CAT exam. क्या ये बात क्लियर है? ओमेट के इंग्लिश पार्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर में थोड़ा इशू हो रहा है, वो तो प्रैक्टिस ही ठीक होएगा ना, कुछ वो बात नहीं है। व्हाट इज रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस? आई टोल्ड यू दैट जो रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होता है आपका, वो ये माना जाता है कि यार अगर आप जिस जैसे मान लो मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट, तो आपका जो वो है मार्केटिंग का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। तो
फाइनेंस कर रहे हो तो फाइनेंस की फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बात होती है सबसे ज्यादा। राइट, यस, विटसॉम टेक्स थ्रू कैट। ठीक है। ऑलराइट, विटसॉम में अप्लाई करना चाहिए, बैकअप रख सकते हो, डिसेंट ऑप्शन है यार। ठीक है। ठीक है, और फिर डाउट्स हैं एनमेट्स के और स्नैप के? देखो यार, जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने यही सबको रिकमेंड किया है कि जो आपका कैट हो जाएगा, कैट के तुरंत अगले 4-5 दिनों में हम एनमेट और स्नैप की जो भी क्लासेस होती हैं सब कुछ वो खत्म कर देंगे, जो रीजनिंग के डिफरेंट चीजें आती हैं। तो अगर आप कोशिश करो तो 10 से 16 के बीच में भर दो, जहां भी आपको मिलती है। ठीक है। नो नो, इट्स नॉट प्रोफाइल बेस्ड बानी। माना जाएगा आयुष वो भी, लेकिन आपको एनएम फार्मा के लिए इतना रेलिवेंट वर्क नहीं चाहिए होता, डोंट वरी। See, weightage of work X depends upon college to college, Shitwa. Right? You cannot जिसे कहते हैं ना बेंचमार्क योर रेलिवेंस, और खासकर जो वर्क एक्स की वेटेज वगैरह सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है वो टीयर 1 कॉलेजेस में पड़ता है। मैंने आपको बताया टीयर 2 और टीयर 3 में इतना नहीं पड़ता, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। राइट। अब जो टीयर 1 कॉलेजेस हैं आपके, उनके अंदर हर कॉलेज में डिफरेंट एक वेट, हर कॉलेज में डिफरेंट होती है, किसी में 5% हो सकती है, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20। So you will have to go as per every college by looking at their website and then decide. We cannot generalize it. पर आमतौर पे क्या 10-10 1% पे 15% वेटेज होती है। ठीक है। अब ये जब फॉर्म ओपन करेंगे शंकर यार, ये तो मैं भी नहीं बता सकता कब फॉर्म ओपन करेंगे। जनरली लास्ट ईयर तो कैट एफएमएस का काफी लेट आया था, काफी लेट। राइट, एफएमएस का बहुत लेट आया था फॉर्म। राइट, आईएमटी का जल्दी आ गया था। तो अब हम अगेन कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेट्स लेट्स वेट। जब आएगा तो एफएमएस ये नहीं होता कि फॉर्म 2 दिनों के लिए आता है, बहुत लंबे टाइम के लिए आता है। ठीक है। देखो यार, न्यू आयाम्स और बेबी आयाम्स बहुत डिफरेंट है। जो आपका न्यू आयाम्स है वो आपके जो आते हैं टीयर 1 में आ जाते हैं काफी सारे, और जो बेबी हैं वो टीयर 2 में ही आते हैं अभी। ठीक है, आपको ब्रांड नेम तो मिलता है, प्लेसमेंट्स में उनकी बहुत अच्छी हो रही है, बट ये लगा लो कि आईएमटी गाजियाबाद में आईएम जम्मू से बेटर प्लेसमेंट्स होती है। ठीक है। इन शॉर्ट कौन से कॉलेज में अप्लाई करते हैं? इन शॉर्ट आप जो भी 80 परसेंटाइल से ऊपर है वो भी आपको करने हैं। दृष्टि देखो, ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट है एक्टिव, वो लास्ट डेट्स वाली, आप कर लेना, मेरे को ऐसे याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। मैं कोशिश भी करता हूँ अगर वो मेरे को मिल जाए। एक सेकेंड। आईआईएससी तो यार वन ऑफ द फाइनेस्ट है ना यार। आईआईएससी आप अगर जाते हो तो आप मतलब इट इज बेसिकली फॉर डेटा साइंसेस एंड इट्स वेरी टफ टू गेट इन देयर। इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कनेक्ट यू विद समवन जिनके वहां पे आ जाते हैं। ठीक है। जो वहां पे है, आई विल गिव यू द डिटेल इनसाइट टू। ठीक है। इन कैट मोक स्कोर 60s की रेंज में है, सो एमडी एसपीएन में फिल करना है, नहीं समझ नहीं आ रहा है, इन्वेस्टर लॉट ऑन स्नैप एंड 5 पे तो अप्लाई। देखो यार, 60 का स्कोर अगर लास्ट टाइम डिपेंड की बात करूँ तो 60 जो है 96-97 परसेंटाइल पे आया था। अब जो एमडीआई है, एमडीआई के अंदर भी आपके पास 3 चीजें होती हैं। एक तो एमडीआई की जनरल एमबीए, ठीक है, एक आपके पास उनकी आईबी है, और एक उनके पास एचआर है, जो मुझे अवेयरनेस है। तो जो जनरल की कट ऑफ जाती है वो अराउंड 98 के करीब जाती है, आईबी 96 के करीब जाती है, और जो एचआर है वो 92 पे भी मिल जाती है कुछ लोगों को। सो इट डिपेंड्स अपॉन किस कौन से कॉलेजेस पे आपको डिपेंड, कौन से कॉलेजेस में आप कौन से जगह से आप एमबीए करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है आपका। ठीक है। क्लियर है? जो ऑपरेशंस के लिए बेस्ट कॉलेज माना जाता है इंडिया में वो निटी होता है। राइट। अब जो कि आया मुंबई बन चुका है। उसके अलावा एस आई ओ एम है। ठीक है, जो ऑपरेशंस के लिए एक स्पेसिफिक कॉलेज माना जाता है। इसके अलावा जितने भी अदर कॉलेज हैं जो उसके बाद बस वो टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 पे डिपेंड करते हैं, ये दो उनके सबसे जो स्पेसिफिक कॉलेज है वो माने जाते हैं। ठीक है। आईबी मेनली इंटरनेशनल बिजनेस होता है यार। देखो मतलब जो उनके प्रोफाइल्स होते हैं वो नॉर्मली मार्केटिंग वाले ही मिलते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। बट उसमें वो डील करते हैं इंटरनेशनल पॉलिसीज वगैरह के साथ।
जो कि इंडिया के फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज क्या हैं, ये सब पॉलिसीज क्या हैं, उनके रिगार्डिंग कंसल्टेंसी में जाते हैं आप, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेजेस एंड प्रोफाइल्स ऑफ इट. Great Lakes worth applying to. It can be a backup as of now, and for you specifically, right? It's a decent college, right? But मतलब shouldn't be a first choice college if you are targeting a tier one college. It's definitely a tier two college. मुझे नहीं पता MDA और उसके sectional cut off क्या है, रिसर्च कर लो. राइट, अगेन आई विल नॉट आंसर दिस कि आप कौन सा कॉलेज वर्सेस कौन सा कॉलेज करो, ये दोनों सेम कॉलेज के होते हैं. ग्रेट लेक्स 4 19-21 का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता. ठीक है. आईएफटी का कितना, आईएफटी का तो पेपर ही अब पता नहीं यार, क्या देखो, अब कुछ भी नहीं पता कितना कट ऑफ जा सकता है, सब स्पेकुलेशंस होंगी ना यार. मैं आपको कुछ भी बोल दूं, है ना. हाउ हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट अभी. आईएफटी किसी को भी नहीं पता क्या, लेकिन आईएफटी टीयर वन है तो काफी अच्छी कट ऑफ जानी चाहिए, मेरा तो मानना यही है. इट इज आईएफटी इज वन ऑफ इंडियाज बेस्ट, राइट. तो उसके हिसाब से जाना चाहिए, बट अब कुछ कह तो नहीं सकते इस वक्त. ठीक है. SPGMP is decent. Again, depends upon what other options you have. आप सबको मैं एक एडवाइस देता हूँ कि अभी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो सिर्फ इस चीज पे होना चाहिए कि आपकी परसेंटाइल क्या आ रही है, आप कितना फोकस कर सकते हैं उस चीज पे. आपका इस चीज पे फोकस नहीं होना चाहिए कि मैं कौन सा उस कौन कॉलेज का कौन सा कोर्स देखूं. ठीक है. आपकी जो आपको फॉर्म्स अच्छे लगते हैं आप उनको प्लीज फिल आउट कर दीजिए. लास्ट में जब आपके कन्वर्ट्स होंगे ना उसमें से चूज करना. इतनी ज्यादा टेंशन आप लोग इस चीज की ले लेते हो तो आप कैसे देखोगे यार. माइकैट हैज डिफरेंट एग्जाम स्ट्रक्चर. हाँ, मैंने बताया आपको कि उसके अंदर साइकोमेट्रिक टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट तीनों आते हैं. ठीक है, गूगल करो, डिटेल देखो. राइट. जीआईएम में अप्लाई करें. जीआईएम इज अ टीयर टू कॉलेज, गोवा का कॉलेज है, गोवा भी घूम लोगे, बढ़िया सा मजा आएगा तुम्हें. तो अप्लाई कर सकते हो, प्लेसमेंट डिसेंट है, टीयर टू कॉलेज है, जहाँ पे अगर आप 4 IMI में अप्लाई करोगे तो बीजीआईएम में भी कर देना. ठीक है. अगेन मैंने आपको जो स्टार्टिंग में ही बताया कि आपकी ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डिपेंड करती है, पर अगर मुझे लेट से मैं चंडीगढ़ से हूँ, मुझे जीआईएम मिल रहा है और 4 मिल रहा है, दोनों में से कोई चूज करना है, तो मैं 4 चूज करूंगा यार, क्योंकि वो घर के पास है, फाइनेंशियल कैपिटल मतलब सॉरी गुड़गांव आसपास है, कंपनीज बहुत सा अच्छी अच्छी है वहां पे. ठीक है. तो दीज आर द फैक्टर्स आई ट्रस्ट अपॉन, क्योंकि प्लेसमेंट्स दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. अंडरस्टैंड दिस पार्ट. ठीक है. यार आईआईटी मैंने बताया, जो आईआईटी जो रैंक 1 मानी जाती है मुंबई, दूसरी आती है दिल्ली, फिर मुंबई का सॉरी फिर मद्रास खड़गपुर सेम लेवल के आती है, कोई दिक्कत नहीं है. Global MBA ऐसा यार, there are a lot of colleges which have this exchange programs and everything. If you are asking about that, they charge you additionally for that. They give you the international exposure for that. Placements आपके वापस इंडिया में ही होती हैं. You cannot settle outside using those MBAs, right? So if you are someone who want to settle abroad, you should rather go for GMAT program. Exchange programs are good for that, for the people जिनके पास अंधा पैसा है, right? Yes, it is good, and they want to get exposure from outside. So yes, yes. फॉर ऑपरेशन इंटरनेशनल कार्डियो मोर एसपी. सी एसपी एंड एसआईएम आई एम मुंबई, ये तीन बेस्ट हैं. नित्या मैंने आपको पहले ही बताया था. इसके अलावा जितने भी आपके टीयर टू कॉलेजेस है ना, उनमें ऑपरेशंस के आपको कोर प्रोफाइल्स नहीं मिलेंगे. आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू मिसगाइड एनीवन. जैसे बहुत से लोग होते हैं उनको फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में जाना है अगर, ठीक है, स्पेसिफिकली किसी रोल में जाना है, तो आपको वो टीयर टू कॉलेजेस नहीं प्रोवाइड करते. टीयर टू की जितनी औकात होती है वो कंपनीज बुलाते हैं, और जो जनरल रोल वो सब देते हैं वही देते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल कंसल्टेंसी की बात करूं, ठीक है, दो तरह की कंसल्टेंसी होती है, एक होती है फंक्शनल कंसल्टेंसी, एक होती है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी. नाउ आई डिडंट वांट टू गो इनटू डिटेल, पर मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देता हूँ. मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में आपके टेक्निकल पार्ट नहीं आते ज्यादा, लेकिन फंक्शनल कंसल्टेंसी के होते हैं जो टेक्निकल पार्ट भी आते हैं, जैसे जिसमें एसक्यूएल यूज हो रही है, ये चीजें यूज, लैंग्वेजेस यूज हो जाती है, और वहां से आप कंसल्टेंट्स बनते हो, तो वो फंक्शनल कंसल्टेंसी मानी जाती है. ये मैनेजमेंट. ज्यादातर जो टीयर टू कॉलेजेस में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोफाइल्स ऑफर होती है, बहुत कम. इन्फोसिस कुछ कॉलेज में जाके फंक्शनल कंसल्टेंसी देती है, बट ये अगेन कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड, ईयर टू ईयर, डिमांड टू डिमांड डिफरेंशिएट करेगा. आप राइट नाउ यू कैन नॉट थिंक बिटवीन टू. आईएसबी इज अ गुड ऑप्शन, बट इसके लिए तो जीमैट देना पड़ेगा, कैट के थ्रू नहीं होता. आईएसबी एज कंपेयर एज गुड एज ए और बी, राइट. तो अगेन इट इज वेरी डिफरेंट बॉल गेम, नॉट रिलेटेड टू व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. ओके.
ठीक है, इसके बाद आई विल शेयर अ लिस्ट विद यू, जिसमें आपको सारे कॉलेज की लास्ट डेट एक जगह में मैं इकट्ठी करके दिखा दूंगा। राइट, वहां से आप देख के अपने आप डिसाइड कर लेना कि आपने कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है। फैक्टर्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिए, उन फैक्टर्स को आपको करना है। डू कॉलेज कंसिडर गैप ईयर्स, टीयर 1 ईयर्स, टीयर 2 नो। वेरी स्मॉल स्मार्ट आंसर वुड बी दिस, कि टीयर 2 में नहीं फर्क पड़ता उन कॉलेज को, टीयर 2 की सीट्स पता है बड़ी मुश्किल से फिल होती हैं। ठीक है, टीयर 2 मतलब ये नहीं कहना कि वहां पे वो नहीं आते, बट दे वांट किड्स। कभी आपने देखा है कि किसी और कॉलेज की 20-20 वेटिंग लिस्ट मूवमेंट्स होती हैं? सिमिलरली टीयर 3 में और भी बुरा हाल हो जाता है, वहां पे और सीट्स नहीं फिल होती। तो गैप ईयर्स का रेलिवेंस सबसे ज्यादा पड़ता है टीयर 1 कॉलेजेस में, दैट्स इट। नो, दिस विल नॉट बी अ गैप ईयर। अगर आपने इस साल ही अपनी करी है, तो आप उनको बड़ा डिफेंड कर सकते हो कि यार आई हैव माय प्लान्स, आई हैव एवरीथिंग इन माय लाइन दैट आई वांटेड टू स्टार्ट, बट फर्स्ट प्रायोरिटी वाज गिवन टू कैट। I know I have enough time and I can focus upon that. It all depends upon how you're communicating. Simple as that. Done? Yes, CFP can be a very handy thing. Yeah, and yes, you can do that. चले, अब मैंने पजल करानी है आप लोगों को, मैं करा लूं। गैप सी, जो आपकी इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप कैन बी यूज्ड एज अ मेजर टू स्पीक अबाउट समथिंग इन द इंटरव्यूज, बट दे इंटर्नशिप डू नॉट गिव यू द प्रोफाइल पॉइंट्स, बीइंग वेरी क्लियर। इंटर्नशिप से आपको प्रोफाइल पॉइंट्स नहीं मिलते होते हैं इंटर्नशिप, लेकिन आपके इंटरव्यू के दौरान जब आप बोलते हो कि मैंने यह इंटर्नशिप करी है, तो वहां पे आपको वो चीज फायदा देती है। क्लियर है? गैप ईयर में व्हाट शुड वी डू देन? गेट अ वर्क एक्स। सी, अब आपको ये तो ट्रेड ऑफ करना ही पड़ेगा ना यार। 1 ईयर का इनफ होता है। देखो, सबसे बड़ी बात होती है, इट्स नॉट अबाउट इनफ होता है, इट्स जस्ट अबाउट शोइंग की दैट यू वर डूइंग समथिंग। राइट, बहुत ये ट्रेड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट गिव्स यू प्रोफाइल पॉइंट्स? देयर आर 4 फैक्टर्स जिसमें आपका प्रोफाइल पॉइंट डिस्कस होता है। एक होता है एकेडमिक्स, जिसमें आपके 10th 12th ग्रेड के नंबर देखे जाते हैं। फिर होता है एक्स्ट्रा करिकुलर्स, फिर होता है आपका वर्क एक्स, फिर होता है आपका कैट स्कोर। ठीक है, इसके अलावा आपके पास डाइवर्सिटी होती है 2 तरह की। पहली होती है आपके पास जेंडर डाइवर्सिटी, दूसरी होती है एकेडमिक डाइवर्सिटी। जितनी भी लड़कियां उनको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दे देते हैं, और जितनी भी एकेडमिक्स वाले होते हैं उसमें नॉन इंजीनियर्स को 5 पॉइंट एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो जो इंजीनियर और लड़के हैं उनको तो मेरी तरह उनको बड़ा औखा है बेचारों के लिए, मैं बता दूं साफ साफ। नहीं करते, सब कुछ नहीं होता। ठीक है, अच्छे था। बाकी सब इंजीनियर्स की हाई इकट्ठी मत करो यहाँ से अपने यही के चक्कर में। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, ये आपको प्रोफाइल पॉइंट्स देती हैं। ठीक है, हाँ, नॉन इंजीनियर। ठीक है, see when they say that every company wants a person who can be molded in a particular way. ठीक है, I'll be very honest. ठीक है, every company wants a person who can be molded in a particular way and who can put a long working hour without any other commitments. When companies see that there is someone with 3 or 4 year work ex, sometimes they feel that this person has already molded himself or herself in a particular corporate way, and to get work from that person might not be that easy. So there are a very few companies which does that, and it is a very big myth that there are companies which do not prefer 3 year of work ex. It is a myth. If your profile is good, if you are one of the best performers, every company would die to get you. So please raise above these points that this is not good. No, that is all a myth. You know, in IIT Delhi, I'll be very honest. आप ये अगर आपको मेरे पे ना विश्वास हो, पता कर लेना। आईआईटी दिल्ली का जो इस ईयर बैच पास आउट हुए, दिस ईयर देयर इज अ पर्सन ऑफ द एज 36 ईयर्स। नाउ हैड दैट पर्सन थॉट कि यार मेरी एज हो गई है, ये हो गया, तो शायद वो कभी एडमिशन नहीं लेता। Right. So these are all myths. If your profile is good, if you're hardworking, everyone would want to get you. Simple as that. Remember this point. Right. We as humans want so much visibility into a future that we take all the risks and everything, but we have to be very clear about this part. Right. अब मैंने आपको बड़ा सिंपल सा बताया फंडा कि देखो यार, अपना DILR, BA और QA, आपको हर हफ्ते यू हैव टू गिव 1 फुल लेंथ मैथ टेस्ट। यू हैव टू, आपको एक फुल लेंथ मॉक तो देने ही देना है, नो मैटर व्हाट इज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन नाउ, बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम। एक्सेप्ट फॉर दैट, DILR के लिए कीप गिविंग सेक्शनल्स। हर रोज का एक सेक्शनल दो अब आप। ठीक है, जो प्रैक्टिस चल रही है वो तो करते ही रहो। आप में से देखो, आप में से बहुत सारे लोगों के पास वो एक्सेस होगा हमारे जो मॉक्स का, जो DILR के बूस्टर मॉक्स है। 50 मॉक्स है यार विद वीडियो सॉल्यूशंस। अगर आप उनको कर लो, आपकी जिंदगी सवर जाएगी। हर मॉक आपका कैट लेवल के। ठीक है,
50 मॉक्स विद वीडियो सॉल्यूशन क्यों नहीं कर रहे हो आप? ठीक है, कंप्लीट दैट, राइट? शिवम, यू शुड डेफिनेटली गिव अ कैट, या व्हाई शुड नॉट यू गिव कैट? मुझे बताओ एक बार। अगर आप कैट नहीं देते मतलब यू आर लूजिंग अ चांस ऑफ गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज। गिव कैट, लेट्स सी व्हाट ऑप्शंस यू गेट एंड देन टेक डिसीजन। व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक दिस इन द बिगिनिंग ओनली? तो ये 50 दिया है के 50 सेक्शनल तो पूरे, राइट? आप मुझे टेक्स्ट कर देना संकेत, इन पूरे मॉक्स की कॉस्ट सिर्फ 499 है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है वो आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। 10 रुपए का एक सेक्शनल है ये। तो अगर आपके डीआईआर में नंबर रुके हुए हैं, दिस इज समथिंग यू मस्ट टेक। बाकी आप सबका एक पर्सनल विजन है, अगर आप नहीं खर्चना चाहते पैसे तो पुराने मॉक्स के पीडीएफ से कर लेना। बट द ओनली थिंग इज वो फील नहीं आती वहां पे, क्योंकि हाँ वीडियो सॉल्यूशन है हर मॉक का, क्योंकि वहां पे आपको रिटर्न सॉल्यूशंस मिलेंगे जो कि आपको आधे वैसे समझ नहीं आते, और टाइमर की प्रैक्टिस भी नहीं होगी, इसीलिए इट इज रिकमेंडेड कि आप इसको इस तरह से कीजिए। ठीक है, ये वीए के आपको जो हमने ही फ्री टेस्ट दिए हुए हैं इतने सारे, आपके पास इस वक्त तक अराउंड 170 टेस्ट आ चुके हैं, जिसमें से आपके पास 102 से 170 35 के वीडियो सॉल्यूशंस है, बाकी सबके टेक्स्ट सॉल्यूशन है। ये वाले जो है वो पेड होते हैं हर किसी के लिए, वो एनरोल स्टूडेंट्स को छोड़ के। आई थिंक 20 रुपीज का एक मॉक होता है, शायद ही 20 रुपए का होता है, राइट? और जो बाकी है वो फ्री वाले हैं, डेली टारगेट वाले, उसको देते रहो रोज रोज। क्वांट में आपको रोज का थ्रेड आ रहा है, उसको करो ना, क्यों नहीं करते हो? मैं रोज के 10 क्वेश्चन डालता हूँ, आप लोग करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं करोगे तो कहीं नहीं। अर्शिता तुम्हारे लिए फ्री है, तुम मत रोको, रो, कोई चक्कर नहीं है तुम्हारा। वेयर इज इट? बच्चा, जो भी आपके वर्बल के इवन नंबर वाले मॉक्स चल रहे हैं, 102 104 अप टू नाउ, उनके वीडियो सॉल्यूशन है ना, दीज आर फ्री फॉर यू बट पेड फॉर अदर पीपल, राइट? दीज आर द ओनली थिंग्स यू शुड बी फोकसिंग अपॉन। क्लियर? सी, हर किसी की एक इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट होती है, तो आप उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि मेरे को तैयारी कैसे करनी चाहिए। क्यूए के आप अगर देखो, क्यूए के आप जो सेक्शनल देते रहो बहुत है यार, अगर डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ प्रेप। ठीक है, अगर आपकी अभी आप उस कैटेगरी में हो कि आपके टॉपिक ही नहीं पूरे हुए, कंसेप्ट ही नहीं पूरे हुए, तो भी आपको सेक्शनल देने चाहिए, ताकि जो कंसेप्ट दे रहे हो उसकी थोड़ी टाइमर की प्रैक्टिस तो हो। यू नीड एटलीस्ट 1 मंथ टू अडेप्ट टू टाइमर प्रेशर, राइट? कई लोग तो 3 महीने में भी नहीं होते, राइट? हाँ, वो दो आप, दैट इज मोर देन एनफ। क्लियर? चले आगे एवरीवन। ठीक है, अब मैं आपको एक टू, आपको कोई और जेनरिक डाउट है? आई टेक जस्ट 1 2 मोर डाउट्स, उसके बाद मैंने एक सेट कराना है, मैं वो कराऊंगा। किसी को जेनरिक डाउट है तो पूछ लो, आई जस्ट टेक 1 2 मोर। एनएम का भरसा करना पड़ता है, हाँ, आपको अलग से भरना पड़ता है बेटा। चलो ट्राई दिस। संकेत, मैंने आपको जब डीआईएलआर का मैंने कोर्स लॉन्च किया तब भी ये बताया था कि हर डीआईएलआर सेक्शनल में 4 सेट है, जैसे कैट में होते हैं, राइट? आपको सेट सॉल्व करना है ना, अगर उस सेट में एक क्वेश्चन और होएगा तो आप उसको मार्क कर पाओगे। तो इट इज नॉट अबाउट दिस, मैंने सबसे पहले हर क्वेश्चन सेट उसके ऊपर लिखा हुआ है दैट द नंबर ऑफ सेट्स एंड द क्वालिटी ऑफ सेट इज एज सेम एज यू कैन फाइंड इन कैट, इट्स बेटर देन दैट, बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस मे वेरी, बिकॉज कैट ने पैटर्न चेंज कर दिया था बीच में अपना। तो इट इज जस्ट दैट जो क्वेश्चंस हैं, कई 4 वाले हैं, कई 5 वाले हैं, कई 4 वाले हैं, कई 5 वाले हैं।
यह संकेत ऑनलाइन ही परचेज करना है उसको बेटा। बिल्कुल आंसरेबल क्वेश्चन है, लॉजिकल आंसर है, सोचोगे तो आंसर आएगा। चलो, शुड आई एक्सप्लेन द आंसर, मैं बताऊं आप लोगों को कुछ आंसर है? मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, इसमें कुछ नहीं दूंगा, आप लोग खुद सोचोगे एंड द आंसर माइट अमेज यू अ बिट। राइट, आप कर लो ट्राई एक बार। ऑलराइट, लेट्स डू इट। 5 लोग हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई।
ये 5 लोग हैं हमारे पास, ठीक है। Who is the senior most? A is the senior most. After that, B is the senior most. After that, C is the senior most. After that, D is the senior most. ये हमारा seniority का level है. So what is the question saying? That the most senior pirate proposes a distribute of coins. यानी कि let's say सबसे पहले A बताएगा कि सबको कितने coins मिलने चाहिए. Just an example कि A कहता है कि मुझे 50 मिलेंगे, इसको 15 मिलेंगे, इसको 15 मिलेंगे, इसको 10, इसको 10. मान लो A ने ये प्रपोज की, ठीक है. Now in this case, let's say A, B, C फेवर में वोट कर देते हैं कि चलो ठीक है, डन. और डी और ई अपोजिशन में जाते हैं. तो अगर इसको मेजोरिटी मिल गई है एटलीस्ट 50% लोगों की, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को मान लिया जाएगा. अदरवाइज ए विल बी थ्रोन इन द वॉटर्स. राइट, दिस इज हाउ द गेम वर्क्स. क्या ये बात समझ आ गई? यस और नो? राइट. उसके बाद लेटस से ए ने जो कंपोजिशन दी थी, राइट, ए ने जो कंपोजिशन दी थी, लेट से उससे सब लोग सहमत नहीं हुए. राइट, बी ने, सी ने, डी ने, ई ने, चारों ने उसके खिलाफ वोट कर दिया. तो ए तो चला गया, ए इज एलिमिनेटेड. नाउ हु इज द सीनियर मोस्ट? बी इज द सीनियर मोस्ट. तो बी विल बी टेकिंग डिसीजंस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी. लेट से बी कहता है कि 25 25 25 और 25. बी ने ये प्रपोज किया और लेट से इसको दो लोगों ने फेवर दे दी और दो लोग अपोजिशन में गए. इन दैट केस ऑल्सो बी विल बी गिवन द शेयर, क्योंकि उसको मिनिमम 50% वो चाहिए. 50% मतलब 50% पे भी ही इज विनिंग द वोट्स. डोंट वरी, मेजोरिटी में 51 नहीं चाहिए, 50% इज डूइंग द फेवर. बट कहीं अगर 3 लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, देन बी विल ऑल्सो बी थ्रोन. सिर्फ 3 लोग बचेंगे और वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. क्या ये बात सबको गेम समझ आ गई? यस और नो? ठीक है. अब जो ए पर्सन है, द पर्सन ए, या जो पर्सन, किसी भी पर्सन का फर्स्ट रूल क्या है, किसी भी पर्सन की फर्स्ट ड्यूटी क्या है, कि ही वांट्स टू सर्वाइव. कि कॉइन तो चलो बात की बात है, सबसे पहले जिंदा रहना जरूरी है. राइट, यस और नो? जिंदा रहना जरूरी है. सो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? कि डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो. हमारी पहली प्रायोरिटी इस तरह से रहेगी कि डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि मैं जिंदा रहूं. ये मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी. राइट. अब इस क्वेश्चन को करने का द ओनली वे इज स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम बैकवर्ड्स, बिकॉज यू नीड टू नो दैट व्हाट एवरी पर्सन इज थिंकिंग इन ऑर्डर टू गेट देयर वोट. आपको ये जानना जरूरी है कि कोई पर्सन क्या सोच रहा है उसका वोट लेने के लिए. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि सबसे पहले ई के परस्पेक्टिव से सोचते हैं. लेट्स थिंक फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ई. क्या ई ऐसा कुछ केस हो सकता है कि सिर्फ ई रह जाए और बाकी सब मर जाए? क्या कुछ ऐसा केस हो सकता है? सिर्फ यस और नो में आंसर दो कि सब मर जाए और सिर्फ ई रह जाए. ऐसा कुछ हो सकता है? देखो, मान लो मान लो कि एक ऐसा केस आया जिसमें ए बी सी मर गए. कोई ऐसा केस आया जिसमें ए बी सी मर गए, मान लो. तो कहने से कि डी विल प्रपोज कि मुझे 100 कॉइन्स मिलेंगे, ई को 0 कॉइन्स मिलेंगे, और वो अपनी फेवर में वोट कर देगा, और ई को उस केस में 0 वोट मिलेंगे, 0 कॉइन्स मिलेंगे. ई जिंदा तो रह रहा है बट ई को 0 कॉइन मिलेंगे और ई कुछ भी नहीं कर सकता उस केस में. क्या ये बात समझ आई? कि अगर ए बी और सी मर गए तो डी कहेगा कि मैं 100 कॉइन्स लूंगा, ई को कुछ नहीं दूंगा, और वो अपनी फेवर में वोट करेगा और 100 कॉइन्स लेके घर चला जाएगा. ई जिंदा तो रहेगा बट ई को कोई कॉइन नहीं मिलेगा उस केस में. क्या ये बात समझ आती है? कि अगर ए बी सी मर गए और सिर्फ डी और ई बचे, तो ऐसी कंडीशन आएगी ही नहीं कि ई अकेला जिंदा बचे. प्लीज यार यस या नो आंसर कर दो एक बार. एवरीवन काइंडली रिवर्ट विद यस और नो. यानी कि अब देखो यार, डी को पता है कि ई को 0 में भी चलेगा. डी को यह बात पता है ना कि अगर हम दोनों रह गए और ई को 0 कॉइन्स मिले तो भी चलेगा. डी को यह बात पता है, इसीलिए तो डी 100 और 0 प्रपोज कर रहा है. अब ये बात तो सी को भी पता है, ये बात तो सी को भी पता है, राइट, कि डी और ई के पास जो कॉइन्स हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे मैं अगर मर गया तो. विच मीन्स लेट्स से सी जिंदा रहता है. अगर हमारा सी जिंदा रहता है और वो प्रपोज करता है कि मैं 99 कॉइन्स लूंगा, डी को 0 दूंगा और ई को 1 दूंगा,
तो क्या अब ईडीसी की फेवर में वोट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। करेगा फेवर में वोट। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने फेवर में वोट ना करी, इफ आई डिड नॉट वोट इन द फेवर ऑफ सी, देन सी विल बी एलिमिनेटेड, देन डी विल डिस्ट्रीब्यूट लाइक 100-0। उस केस में तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। यस और नो? क्या ये बात समझ आती है कि अगर मैंने उसकी फेवर में वोट ना करी और सी चला गया तो मुझे एक भी कॉइन नहीं मिलेगा, तो कम से कम एक तो मिल रहा है और मैं जिंदा भी रह रहा हूं, इससे बेटर क्या होगा? क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अब बी को भी ये पता है। जब बी को पता है कि अगर मैं मर गया तो ये कंडीशन होने वाली है, 9901 रहने वाला है, बी को ये पता है। तो बी क्या कहता है? बी ये प्रपोज करता है कि मैं क्या करूंगा, 9901, 9901 और 0 ये प्रपोज कर देता हूं, बी कहता है। ठीक है, ये हमारा प्रपोज किया था डी ने, ये प्रपोज किया था सी ने, ये प्रपोज किया था बी ने। अब बी को ये पता है, बी नोज दिस, कि अगर मैं मर गया, बी को पता है कि अगर मैं मर गया और सिर्फ सी डी ई बचे, उस केस में डी को तो एक भी कॉइन नहीं मिल रहा, उस केस में तो डी को एक भी कॉइन नहीं मिल रहा। बट मैं क्या करता हूं, मैं डी को एक वोट कॉइन दे देता हूं ताकि उसको एक कॉइन तो मिले कम से कम। नहीं तो अगर मैं मर गया तो सी 9901 करेगा और उस केस में तो डी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब जब बी ने ये प्रपोज किया तो कहने से बी और डी तो उसकी फेवर में आ गए। हाँ या ना? आगे। तो कहने से इस केस में बी और डी बी की फेवर में वोट करेंगे। डू यू एग्री? तो ये कंपोजिशन रहने वाली है। यस और नो? ठीक है। अब ए है तो इंटेलिजेंट, ए भी देख रहा है कि यार बी अगर मैं मर गया, ए को पता है कि अगर मैं मर गया तो बी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला है कि सी और ई को एक भी कॉइन नहीं मिलेगा। तो यानी कि अगर मैं सी और ई को एक भी कॉइन दे दूं तो वो मेरी फेवर करेंगे, तो वो सी को एक दे देगा, ई को एक दे देगा, बचे कितने? 98 वो खुद रख लेगा, बी और डी को कुछ भी नहीं मिलेगा। इस केस में ए को कितने मिले? 98। और ए सी और ई ने किसकी फेवर में वोट किया? एक तरफ। बचा कौन सिर्फ? बी और डी। उन्होंने किसमें किया? ऑपोजिशन में किया। तो दिस मीन्स कि जो मैक्सिमम ए मिल सकता है, ए को मैक्सिमम 98 मिल सकते हैं। क्या ये क्लियर है? यस और नो? तो दिस mystery nas, see, a knew this thing, A knew this thing that if I am not getting a favorable vote, if I am not getting a favorable vote, if I am getting eliminated, in that case, B will propose in such a way, right? B will propose in such a way that C and E are getting 0 points. Do you understand this, Mr. Inas? Do you understand this? That C and E will get 0 if B gets eliminated. A knows this, right? So in order to get them into favor, they are right now getting 0. So even if they are getting 1 and 1, even if they are getting 1 and 1, they know that they are going to favor A, because otherwise they will be getting 0. So 980101 is the proposition made by A, so that A, C, E are in the favor and B and D are against, and that way A is getting 98. It is not about being unfair or fair, Sparsh. सबके लिए देखो बेसिक बात क्या है, जीना इज द बेसिक थिंग। तो इस केस में ए जी भी रहा है और बाकी सब इंटेलिजेंट भी है और उसके कॉइन्स भी ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो ए ने अपना सोचना है ना, सबके बारे में थोड़ी सोचेगा। क्या आप अपने कैट में 2 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करोगे कि मेरे साथ वाले को नहीं हो रहे? एवरीवन वांट्स टू विन एट द एंड, दैट्स इट। एंड दिस इज द हार्श ट्रूथ। नो मैटर कौन किसका कितना भाई है यहाँ पे, एट द एंड व्हेन कैट का डे होगा सब एक दूसरे का कंपटीशन है। बात खत्म। सिवाय मेरे, मैं तुम सबका भला चाहता हूं, मैं बता दूं। क्लियर है? राइट। So this completes our session for today. But there is one more thing that I would want to
mention before anything. Just give me 1 second. Yeah, junior, Anshuman, being on a junior level does not fix this thing that they will vote in your favor just because they are your juniors. No. Your question is one vote to DNE since we know that DRE are junior most of the. No, 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 no. See, I know that everyone wants to live. And when if someone thinks that I can get more number of points by voting against my senior, they will do that. Right? That's why it is that is very important to ensure that everyone is voting you on the basis of coins plus livelihood. That is the basic thing, nothing else. राइट. सो एक दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ. आप में से कई लोग मॉक्स दे रहे हो, मॉक्स के स्कोर आपके बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं. किसी मॉक में 80 आया था तो किसी में 20 आ जाता है, एंड कभी क्वांट में 40 आता है तो कभी 10 आ जाता है. राइट. डीआईआर में 35 आता है तो 12 आता है, कि कभी डीआईआर में 20 आता है तो कोई -2 आ जाता है. राइट. सबसे सिंपल लॉजिक यार ये आपके, जो मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि आपके दिमाग में डालो अपनी ये बात कि योर स्कोर्स आर नॉट anywhere related to your CAT scores. They can indicate you your improvement personally, but they cannot ensure you. I have and kasam se I'm not lying. I have seen people who were getting in 90 early 90s 90 91 percentile, and they ended up getting 99, right, around 99. So आप ये बात समझो कि यार ये आपका एक ट्रू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं है. आपका जो कैट का पेपर है इस बार बहुत सब लोग देने वाले हैं, 3.5 लाख लोग देने वाले हैं कैट. तो आपकी परसेंटाइल कम स्कोर पे ज्यादा बनने की आशंकाएं हैं, क्योंकि बेवकूफ और आएंगे अभी, सिंपल एज दैट. ठीक है. जो जहां मतलब अब अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी वही रहता है, मैं आपको बहुत ऑनेस्ट बता दूं, मेरा ये टेक है पर्सनल, प्लीज डू नॉट, इस बात का असली कैट से कोई लेना देना नहीं है, मैं साफ डिस्क्लेमर दे रहा हूँ. बट मेरा ओपिनियन ये है कि अगर कैट का डिफिकल्टी लेवल वही रहता है जो लास्ट ईयर था, तो लास्ट ईयर जहां 85 पे 99 बनी थी, इस बार 80 पे 99 बनेगी, क्योंकि बेवकूफ ज्यादा हो गए. ठीक है. Saksham, you tend to forget a lot of things, better. Not even vocabulary. You also tend to forget the QA formulas that are done in class. The only way to improve any of these things is to give more sectionals regularly. Nothing else. और कोई shortcut नहीं है उसका. More sectionals regularly. More, more, more. D&Ds know that they can get zero. No, 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 no. See, again you are twisting a few things, Anshuman. ये मैंने share किया था आपके साथ कि both D&Ds are not getting zero in any case. आप ये बात याद रखना. Right. डीएनई दोनों को कभी भी 0 नहीं मिला और डीएनई दोनों को भी 1 नहीं मिला. अगर ए एलिमिनेट हो जाता, अगर आप ये कह रहे हो कि व्हाई नॉट गिव लाइक दिस. आई थिंक यू आर ट्राइंग टू से दिस, राइट. राइट. इस केस में आपका ए को कितने पॉइंट्स मिले? ए को तो 90 80 मिले ना. दैट इज योर मेन क्वेश्चन. दैट इज जस्ट अ डिफरेंट प्रोपोजिशन यू आर टेलिंग मी. यस, दैट इज अचीवेबल, राइट, क्योंकि जो असली प्रोपोजिशन है उसमें तो इसको 0 ही मिल रहा है. बट ए की जो क्वांटिटी है वो सेम ही रहेगी. जो आप आंसर कर रहे हो 980011, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट, क्योंकि वैसे भी डी को 1 से ज्यादा नहीं मिलने वाला किसी और केस में. बट ए को तो 90 80 मिलेंगे ना इस केस में भी. आशुतोष, आई रेड इट. ठीक है. बात ये है कि अगर आपके सेक्शनल में इंप्रूव हो रहे हैं और मॉक्स में नहीं इंप्रूव हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने सेक्शनल तो और दे दी है, जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट दिख रही है और आपका एक्यूमेंट भी डेवलप हो गया है. लेकिन फुल लेंथ में वो एक्यूमेंट अभी नहीं डेवलप हुआ, विच मींस यू नीड टू गिव अ लिटिल मोर फुल सेक्शंस अभी. अब आपके पास सिलेबस अगर पूरा हो गया तो हफ्ते के 2 भी फुल लेंथ दे सकते हो आप अभी. ठीक है. अगर आपका सब सिलेबस पूरा हो चुका है तो, अदरवाइज अभी एक ही देते रहो उस पर एवरीवन. ठीक है ना. So the most important thing that I was telling you, that you need to understand this point, that mocks are not reflective of your क्या कहते हैं उसको, ट्रू कैट स्कोर.
तो अपने दिमाग से निकाल दो कि किसी मॉक में अच्छे आ गए तो तुम्हारे कैट में अच्छे आएंगे, किसी मॉक में बुरे आ गए तो कैट में बुरे आएंगे। अपने आप के लिए ना रोज के टारगेट्स पहले फिक्स करके रखो, एक हफ्ते के। इट इज वेरी गुड टू फिक्स टारगेट्स इन एडवांस, सो दैट वेन एवर यू आर गेटिंग गुड मार्क्स, यू आर नॉट गेटिंग कैरिड अवे कि चलो मैं अब एक दो दिन रिलैक्स कर लेता हूँ, या यू आर गेटिंग बैड मार्क्स, यू आर गेटिंग कैरिड अवे। जितनी देर आपके टारगेट्स सॉर्टेड रहेंगे ना हर रोज के लिए, उतना ही आपके लिए बेटर रहेंगी चीजें। ठीक है, अपने टारगेट्स को सॉर्ट करना शुरू करो, एंड टारगेट्स को रिटर्न में लिखो। मैं आई हैव ऑलवेज टोल्ड दिस टू यू कि अपने टारगेट्स को रिटर्न में लिखो कि मुझे ये अचीव करना है इस हफ्ते में, दैट्स इट। ठीक है, डन। चलो, this completes the session everyone. I hope you all enjoyed it, right? Bye bye, have a good Sunday. We have a session at 2 and then a session at 9 today, right? Bye bye, take care.